Now, this is about to get real serious, a little comforting, and a lot more assuring, so brace yourself. Hi, this is Lavana, and welcome to my channel, or welcome back to my channel. So, the video is gonna be about what 18 to 21 year people deal with. Like, ये ऐसा time phrase होता है जिसके अंदर आप adult हो and आप बड़े भी नहीं हो बट आप बच्चे भी नहीं हो. So, I think इस चीज़ से हर कोई deal करे. So I posted a story on my Instagram and a lot of people asked me some real good questions. Like in return, I got so good questions कि मैं एक बार को खुद शॉक थी देखे कि यार it's just so close to home, ठीक है, like it's just hitting somewhere. So I was like, okay, I need to ask, okay, I need to like actually reply, and I had to sit through कि यार wow, as a bestie, as a companion, or just as an elder sister, you can just take something out of from this video. And I don't want this video to be like यार मैं आपको एक advice देती हूँ, this is like a blueprint, this will help you get through life. No, this is not that type of a video. It's just you and me chit chatting. So get yourself coffee, maybe just do whatever you want to do, and you could just have this in your background, or just have a fun chat with me. So let's get into it. So first segment is kindness, bullying, and emotional awareness. And the very first question is, how do teenagers who actually aren't insensitive explain that bullying is not body positivity or it ain't motivating in general? First of all, if it hurts someone, then it is not motivating. Okay, seriously. Like, I get it, okay, because this is something जिसने कभी डील नहीं की है, and then they'll be like, oh, let's see यार मैं आपको ज्ञान दे देती हूँ, मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ. It is a lot, okay, you won't listen to them and you might not need that, okay. अगर वो motivation आपको in process hurt कर रही है, एक तो होता है कि यार चलो ठीक है आपको कुछ थोड़ा सा आपने एडवाइस ली, आप थोड़ा उस चीज़ को फॉलो कर सकते हो, there is one thing, okay. Second is, but अगर आपको लगता है यार ये that person is literally being passive aggressive or just indirectly bullying me on the name of body positivity, so you should just simply cut them off, okay, or you should just actually not cut them off, or just have a boundary, okay. Just say that this is not something I would like to hear, because it is your body. And to be honest, this is such a ridiculous concept, okay, क्योंकि सबको पता होता है अगर मेरे फेस पे एक्ने है, मेरे को पता होगा मेरे फेस पे एक्ने है. इट्स नॉट लाइक कि आई एम ब्लाइंड और आई एम ऑब्लिवियस कि अच्छा मेरे फेस पे एक्ने, आपने बताया मुझे अब पता चला, वाओ यार. या फिर मेरे को अगर कोई आके बोलेगा लवना आपका वेट बढ़ गया, ओ अच्छा, लवना आपकी हाइट छोटी है, अच्छा छोटी है, नहीं मुझे पता होगा, ठीक है. सो इफ आई कम एंड आस्क यू फॉर सम एडवाइस, देन गिव इट. वरना फ्री का ज्ञान किसी को नहीं पसंद होता. बट ठीक है, अगर आपको कोई नोन में है और आपसे बहुत क्लोज है, एंड इफ दे आर गिविंग यू सम एडवाइस और सम सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन, देन इट्स फाइन. बट इफ दे आर बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल इन द प्रोसेस, draw the line there, okay, literally draw the line there. Second question is, easiest way to control our emotions and not let them get the best of us, cause for real, I was the person who used to do it for the plot, okay. For the longest period of time, I was the person who would do it for the plot and be like, let's do it. But now we're growing and we cannot do that, okay. Like, I'm in a phase जिसके अंदर I'm in my early 20s and I would never advise someone to do it for the plot, okay. I mean, okay, you only live once, but that sort of advice doesn't work if you are really serious about your life, okay. So the question is, easiest way to control our emotion, take a day, okay. Just take a day. मेरे दिमाग में कुछ, जैसे for example मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन है कि let's just stop my ex. I have this sudden urge, okay, कि आज मैं थोड़ा सा emotional breakdown हो, let's just stop my ex. Would I do it? Maybe, शायद से, but that's a stupid decision, okay. What I should do is, or instead of कि take a day out, seriously. सबसे इजी चीज़ है एक दिन लो, एंड एक दिन बाद भी इफ़ यू फील द सेम, लिटरली इफ़ यू फील द सेम, बिकॉज मोस्टली यही होता है कि आप एक दिन रो लोगे, फिर उसके बाद अगले दिन आप आ जाए तो ठीक है, नाउ आई एम इन माई सेंसेस, अब मैं ये नहीं करने वाली हूँ. बट फिर भी अगर आपको लगता है अगले दिन तक आपको हो रहा है कि यार मुझे करना है, मे बी डू इट, ओके. बट मोस्ट ऑफ द टाइम टेक अ डे, एंड एक दिन के अंदर मतलब 24 आवर्स के अंदर आपके ना इमोशंस कंट्रोल में हो जाते हैं. नहीं कि चलो ठीक है, मुझे ये चीज़ अब नहीं करनी है, मुझे ये चीज़ शायद नहीं करनी चाहिए, बिकॉज तब मैं एक अलग इमोशनल स्टेट में थी, अब मैं एक अलग इमोशनल स्टेट में हूँ. या फिर जर्नल सबसे बेस्ट, उसके अंदर प्रोस एंड कॉन्स लिख लो. मैं हमेशा ये करती हूँ, मैं शुरू से लेकर एंड तक प्रोस एंड कॉन्स की लिस्ट बना देती हूँ, और जो सबसे ज़्यादा बड़ा होगा मैं वो कर लूँगी. दिमाग कहता है कि यार मैं कंफर्ट जोन में रहूँ, मुझे जो सेटिस्फैक्शन मिलेगी मैं वो चीज़ पे एक्ट कर दूँ, बट दैट इज नॉट राइट यार, क्योंकि बहुत ही reckless decisions तो चलो ठीक है, but कभी कभार control takes you so far, okay, literally control takes you so far. Like, I have a story but I cannot tell it, but let me just tell you, control takes you so far in life कि you'll have your self-respect back, okay, you'll have your shit in control. So I would say कि not let your emotions take the best of you, because
ऑब्वियसली बाहर जाओ, लाइक लोगों से बात कर लो, पूछ लो, अगर कोई नहीं है तो एक बार खुद ही जर्नल कर लो प्रोज एंड कॉन्स की लिस्ट बना के। वरना सबसे बेस्ट चीज़ रहती है कि एक दिन लो, रो, धो, जो करना है करो और डिलीट मार दो भाई चीज़, अगर ऐसे कुछ किसी से रिलेटेड है तो। बट अगर कोई एक रैंडम डिसीजन है या कोई और सीरियस डिसीजन है, मे बी अबाउट रिलेटेड टू करियर, जस्ट टेक अ डे एंड थिंक अबाउट इट कि एक्चुअली में व्हाट डू यू वांट, रादर देन अभी दिमाग में आया, अभी कर दिया, अभी सब कुछ हो गया, नहीं। ओके, सो नेक्स्ट सेगमेंट which is school, college and corporate life, or maybe no, school, college, corporate and private life, my favorite. So the question is, how do we manage school and studies together in 12th? Because going to school every day and maintaining attendance and stuff all together is overwhelming. Yes, it is overwhelming. I swear to God, जब होता है कि यार मुझे अटेंडेंस बनानी, मेरे 75% अटेंडेंस होनी चाहिए, मेरे को चाहिए कि मैं थोड़ा सा काम भी करूँ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, अरे मेरे को अपने फ्रेंड्स को भी तो टाइम देना है, मुझे अपनी फैमिली को भी टाइम देना है, बट मुझे भी तो टाइम देना है। इट जस्ट गेट्स अ लॉट, लाइक योर प्लेट इज फुल। सीरियसली इस टाइम पे यही होता है। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये चीज़ मैं अपने भाई को भी बता रही थी कि जब आप बड़े होते रहते हो ना, चीज़ें कम नहीं होती हैं, कभी भी कम नहीं होती है। इफ यू थिंक कि आप बड़े होके बाद चलो ठीक है लाइफ विल गेट ईजी, नहीं, ईजी तो कभी कुछ नहीं होता, ठीक है। एक टाइम पे चीज़ें ऐड अप ही होती रहती है। मैं बच्ची थी तब मेरे पास शायद ईवीएस की एक बुक थी, मैं बड़ी हुई एसएसटी की 3 बुक हो गई, फिर उसके बाद मैं और बड़ी हुई तो मेरे पास शायद एसएसटी की मोटी मोटी 3 बुक्स हो गई, 4 बुक्स हो गए, ऐसे चीज़ें ऐड अप ही होती रहती है। जस्ट लाइक कि तुम्हारी लाइफ में वो चीज़ें ऐड ही हो रही है, ठीक है। बट हाउ डू यू मैनेज दिस कि थोड़ा सा टाइम क्या क्रंच होता है, बिल्कुल होता है, बट यू नीड टू प्रायोरिटाइज कि तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। स्कूल इज ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट, अटेंडेंस इज ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट बिकॉज एग्जाम्स तभी देने मिलते हैं, तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। बट वट यू कैन डू इज मेक अ स्केड्यूल जिसको लाइक यू लुक फॉरवर्ड टू डू, लाइक मेक अ स्केड्यूल आउट ऑफ इट। लाइक ठीक है, एक स्केड्यूल बना लो जिसके अंदर मे बी मेरा एक स्कूल में बहुत अच्छा फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, मैं उससे मिलने जा रही हूँ, मैं उससे बातें कर रही हूँ, मैं उसके साथ एंजॉय कर रही हूँ चीज़ों को। That's fun for me. That is literally the best thing for me. Okay, पहली चीज़ हो सकती है। Second thing you can do is कि give yourself a reward कि मैं स्कूल से आई, मैं थोड़ी देर खेलने चली गई, ताकि एटलीस्ट मुझे वो मंडेन रूटीन से थोड़ा सा मैं बाहर निकलूँ कि यार मुझे तो सिर्फ स्कूल जाना पड़ता है, मुझे तो कुछ और करने को मिलता ही नहीं है, मैं और क्या ही कर सकती हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हो गया। या फिर अगर लग रहा है कि यार चलो ठीक है मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बिल्कुल एक टू डू लिस्ट बनाओ, करो, मैं तो बोलती हूँ सारी चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है। बट वो लगता है कि यार ओवरवेलमिंग हो गया, एक दिन ऐसा रखो हफ्ते में जिसके अंदर यू डू नथिंग, ठीक है। यू विल लुक फॉरवर्ड टू दैट डे, बट वो चीज़ें तभी मिलेंगी जब तुम अपनी टू डू लिस्ट कंप्लीट कर देते हो। आई डू दिस अ लॉट, ठीक है, कि मैं अपनी टू डू लिस्ट डेली बना देती हूँ, मैं अपना काम करने लग जाती हूँ, एंड एट नाइट यूजुअली डेली एट नाइट मैं अपना दिमाग को एकदम रेस्ट मोड पे कर देती हूँ, सब म्यूट, सारी काम वगैरह का सब कुछ म्यूट, सब कुछ खत्म। उसके बाद अगर मेरे पास कोई मैसेज आएगा उस पीरियड के बाद मैं नहीं करूँगी, लिटरली मैं नहीं करूँगी। और ठीक है चलो आज स्टूडेंट ये लगता है कि आज शेड्यूल नहीं बना हुआ है, हमारा शेड्यूल बहुत ज़्यादा मैसी है, एक घंटे का एक टाइम निकालो जिसके अंदर तुम सिर्फ रेस्ट कर रहे हो, तुम अपने दिमाग को रेस्ट दे रहे हो, ये नहीं कि बस बेड पे पड़े हो आदमी, लिटरली तुम मेंटली भी रेस्ट ले रहे हो। तो एक टाइम निकालो या हफ्ते में एक दिन निकालो जिसके अंदर यू जस्ट रेस्ट एंड डू द थिंग यू लव। ओके, मे बी इट्स अ हॉबी, ठीक है, या फिर बाहर चले गए या कुछ ऐसा कर लिया कि चलो कुछ अच्छा खा लिया, कुछ अच्छा बना लिया। इट जस्ट एक वो रहता है कि एक हैबिट ब्रेक हो जाती है, एक पैटर्न ब्रेक हो जाता है। ओवरवेलमिंग तब भी लग रहा होगा, चीज़ें कभी खत्म नहीं होती हैं कि ओवरवेलमिंग कम कैसे लगे, दैट इज बुलशिट। अगर कोई बोलते कि अरे यार आप ओवरवेलमिंग होना बंद हो जाओगे, नहीं, यू नीड टू फाइंड वेज कि यार कैसे आपको बेटर लग सकता है, बिकॉज चीज़ें खत्म नहीं होती हैं। और आगे जाओगे, 12th के बाद कॉलेज में जाओगे, 10 एक्टिविटीज़ होंगी, सोसाइटी ज्वाइन करोगे, थिंग्स जस्ट पाइल अप, तो यू नीड टू फाइंड अ वे जिसके अंदर आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव इज हाउ इज लाइफ इन कॉर्पोरेट एज अ यंग गर्ल। Hello, me. I am a young girl in corporate. So I am doing internship, okay, and एक टाइम पे मैंने दो internships भी करी है। तो आई वुड से कि 18 से 21 की एज ले लो या उससे आगे की भी ले लो, अर्ली 20s एंड ये वाली एज होती है, उसके अंदर आपके अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। मैं सीरियसली बोलूँगी उस टाइम पे आप होते हो कि मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, मतलब उस टाइम पे ना आपको एक वो होती है, ड्राइव होती है कि भाई मुझे ये काम करना है, मुझे ये इंटर्नशिप चाहिए, मुझे ये रिज्यूमे में डालना है, मुझे अपनी पर्सनालिटी पे काम करना है, मुझे क्या कहते हैं कॉलेज में भी एस करना है, मुझे हर चीज़ में एक बहुत अच्छी चीज़ें करनी है। इट्स लाइक यू आर वेरी पैशनेट अबाउट कि मुझे सब कुछ करना है। एंड इन कॉर्पोरेट ऑल्सो यू हैव दिस ड्राइव कि यार मुझे तो दिखाना है करके, अब तो मेरे को कुछ दिखाना है कि अरे मेरी तो अभी ही सैलरी एकदम हो जाए, मेरा स्टाइपेंड हो जाए तगड़ा वाला। तो आई वुड से कि कॉर्पोरेट में सीखने को बहुत चीज़ें मिलती हैं, बीच बीच में बर्नआउट भी होता है, एंड कॉर्पोरेट के अंदर हर चीज़ पता लगती है। लाइक यू गेट द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, नॉट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बट यू डू गेट अ टेस्ट ऑफ इट। ओके, कि ठीक है मेरे पास थोड़ा सा अर्निंग आना शुरू हो गई है, पहले तो शुरू में रहता है कि चलो ठीक है अपनी फेवरेट चीज़ें खरीद लूँ, दैट मेक्स यू हैप्पी, ठीक है। उसके अंदर एक होता है कि आपको ड्राइव मिल जाती है कि ठीक है मैं काम कर रही हूँ, मुझे थोड़े से उसका वो भी मिल रहा है, आउटकम भी मिल रहा है, विच इज जस्ट स्टाइपेंड और समथिंग, तो अच्छा लगता है। फिर उसके बाद आप आते हो चलो सेव भी करना है। तो कॉर्पोरेट में
सीखने को बहुत मिलता है, ठीक है। बहुत ही अच्छा साउंड करता है एंड अच्छा होता भी है। इट डिपेंड्स कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। पैशन के अंदर काम कर रहे हो आप अपने, तो हमेशा ही अच्छा लगेगा। बट इफ यू जस्ट वर्किंग क्योंकि यू आर अर्निंग एंड यू नीड टू अर्न, ओके, इफ यू आर जस्ट वर्किंग कि मेरे को सिर्फ कमाने हैं वैसे, देन दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट कॉर्पोरेट में लाइक देयर इज समथिंग जो फन भी है, कॉर्पोरेट में स्ट्रगल भी है, कॉर्पोरेट में लर्निंग्स भी हैं, कॉर्पोरेट में बाउंड्रीज भी हैं, ठीक है। कॉर्पोरेट में आपको समझ आ जाएगा कि हाँ मुझे किससे कितनी बात करनी है, किसको कितना टाइम देना है, किस चीज़ को कितना प्रायोरिटाइज करना है। मैं हर चीज़ को टाइम नहीं दे सकती हूँ, मैं हर इंसान से बात नहीं कर सकती हूँ। आई नीड टू मैनेज टाइम, क्योंकि कॉर्पोरेट में करते करते आप लाइफ का भी सीख रहे हो, ठीक है। उसके अंदर सिर्फ आप ऑफिस का काम नहीं सीख रहे हो, उसके अंदर आप ये भी सीख रहे हो कि मुझे लोगों से कैसे डील करना है, क्लाइंट से कैसे डील करना है, या फिर मुझे जब आगे जो चीज़ में जाना है वो कैसे सीखनी है मुझे। तो आई वुड से ओवरऑल लाइक लेट मी जस्ट कट इट शॉर्ट, लाइफ इन कॉर्पोरेट इज फन and boundaries होनी चाहिए. Next question is how to balance private and professional life with college since you do it very well. Okay, this is a friend of mine who asked me. So I would say कि ठीक है, there are days जहाँ पे I literally give up. I just go into this major slump कि अब मेरे से नहीं हो रहा है, मेरा अब हो चुका है, ठीक है. But I am a type of person जो खाली बैठ नहीं सकती, ठीक है. And I know this is something I'm still working on कि खाली बैठना सीखो थोड़ा टाइम, ये नहीं कि हर टाइम काम करते रहना है. But I am a type of person जिसको काम ही करना है. सच में वर्कोहॉलिक कि भाई मैं काम करूंगी, मुझे काम मिला है, मैं काम करके खत्म करूंगी, जितना जल्दी कर सकती हूँ मैं काम करूंगी, कुछ और काम करना है मैं वो भी कर लूंगी. सो येस, हाउ डू आई बैलेंस? थिंग इज कि मैंने एक टाइम फ्रेम बना रखा है एंड आई नो माई सेल्फ कि मेरे से रात को काम नहीं होता है, तो मैं दिन में जल्दी उठ के सिर्फ दिन में काम ही कर रही होती हूँ. मेरा उस टाइम पे एकदम लॉक इन होके फ्लो स्टेट में होती हूँ मैं, एंड उसके बाद आई एम लाइक अब मैं सिर्फ काम करूंगी, मेरे से और कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है. क्योंकि मुझे पता है कि शाम को मैं सिर्फ अपने को टाइम देने वाली हूँ, अपनी फैमिली को टाइम देने वाली हूँ, एंड मेरा शाम का टाइम सिर्फ मेरी फैमिली के लिए और मेरे लिए होता है. आई वुड सी सम ड्रामा, आई वुड सी सम मूवीज, आई वुड जस्ट ईट समथिंग गुड, यू नो, और गो आउट विद माई फैमिली, जस्ट हैव गुड टाइम विद देम, ठीक है, सिटिंग इन द लाउंज एंड ये सारी चीज़ें. सो हाउ डू आई मैनेज दिस कि प्राइवेट लाइफ के अंदर मैं देख लेती हूँ कि चलो ठीक है यार, मेरे को अपनी चीज़ें कहाँ कहाँ रखनी है, कैसे कैसे करनी है, तो मैं प्रोफेशनल लाइफ में एक टू डू लिस्ट बना के रखती हूँ. आई स्वेयर टू गॉड, मैं हैबिट ट्रैकर्स ले लो, नोशन ले लो, मैं हर कैलेंडर ले लो, मैं हर चीज़ का बना के रखती हूँ कि यार मैं ये चीज़ें कर रही हूँ, मुझे पता है ये टिक करती रहती हूँ. द सेटिस्फैक्शन आई गेट कि अरे मैंने ये कर लिया टिक, ये कर लिया टिक, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो, ठीक है. लिटरली मुझे बहुत अच्छा लगता है वो. एंड अबाउट कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ में कैसे रखती हूँ या मैं अपनी प्राइवेट लाइफ कैसे रखती हूँ, प्राइवेट लाइफ में मैं ये कर लेती हूँ कि कभी कभार ना मुझे होता है कि आई एंजॉय माई कंपनी, ठीक है, आई एंजॉय माई कंपनी. इफ आई डोंट हैव अ फ्रेंड आई एम फाइन, इफ आई हैव अ फ्रेंड देन ऑल्सो आई एम फाइन, एंड आई एम एन एक्सट्रोवर्ट, सो मुझे इतना फर्क लाइक मुझे इतनी दिक्कत नहीं आती है. आई मेक फ्रेंड्स लाइक दिस, ठीक है. तो आई एम अ वेरी सोशल पर्सन. तो बट ये है कि मेरी प्राइवेट लाइफ के लोग और मेरी प्रोफेशनल लाइफ के लोग बिल्कुल सेपरेट है, उनको कुछ नहीं पता होगा. पर्सनल लाइफ में मेरा कुछ भी हो रहा भाई, लाइक हमटी डम्टी विल हैव अ ग्रेट फॉल, ठीक है, पर्सनल लाइफ में. प्राइवेट लाइफ में मैं तब भी वैसे ही होती जैसे मैं कल काम कर रही थी, आज काम कर रही हूँ. सो हाउ डू आई बन गया पोर्टफोलियो प्रूफ सबसे बेटर रहता है यार, बिकॉज उसके अंदर एटलीस्ट ये रहता है कि हाँ मैंने ये चीज़ें कितने अच्छे से करी हैं, ये चीज़ें मैंने अचीव करी हैं, ये चीज़ों पे मैंने वर्क करा है, ये चीज़ें मैंने अभी तक अचीव कर लिया, तो मैं आगे भी कर सकती हूँ. तो एक वो सेटिस्फैक्शन रहती है कि हाँ यार जब मैं इतना कर सकती हूँ तो मैं आगे भी कर ही सकती हूँ. तो एंड दैट टू माई पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव. तो मेरा कुछ भी क्रैश आउट या कुछ भी होता है तो मैं अपने पेरेंट्स से बात कर रही थी. तो दैट्स हाउ आई मैनेज. लाइक मैं मूवीज़ देख लूँगी, अपना पर्सनल टाइम में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ. सीरियसली, मैं अगर रात को नहीं हूँ अवेलेबल तो नहीं हूँ अवेलेबल, सिंपल एज दैट. मैं इसलिए थोड़ा सा सेपरेट रखना मुझे सीख गई हूँ. मैं छोटे बोलता कि मैं 8-9 बजे तक पीपीटी बना रही हूँ. मेरी मैनेजर को कॉल आ गया, मैंने आपने आज का कर दिया था क्या, अच्छा आप मुझे जरा बता दो कि क्या क्या कर लिया. अब मैं नहीं करती, मुझे पता लग गया कि हाँ मुझे इस टाइम फ्रेम के बाद किसी को अटेंड ही नहीं करना है, मैं नहीं करूँगी. मुझे पता है इस टाइम फ्रेम के बाद मैं बात नहीं करूँगी. समथिंग यू लर्न विद टाइम कि ठीक है मुझे कैसे बैलेंस करना है, मुझे किसको प्रायोरिटाइज करना है और कितने टाइम पे प्रायोरिटाइज करना है, टास्क कौन सा प्रायोरिटाइज करना है प्राइवेट लाइफ में, सॉरी प्रोफेशनल लाइफ में, एंड प्राइवेट लाइफ में आपको किसको प्रायोरिटाइज करना है, अपने आप को, फ्रेंड्स को, फैमिली को या सबको, या कैसे कैसे करना है. सो दैट्स आवर बैलेंस. The next segment is confusion, problem or process. So question is, what if this confusion isn't a problem? What if it's a process? I love this perspective, okay? I love that. I love the person who has asked me this, okay? Like seriously, this perspective is just so good. क्योंकि no one has a blueprint. No one has a blueprint. Everyone is figuring it out. ठीक है, किसी किसी के एक्सपीरियंस डिफरेंट है, किसी किसी की लाइफ चॉइसेस डिफरेंट है, किसी किसी का पाथ डिफरेंट है, एंड किसी के पास ब्लूप्रिंट नहीं रहता, ठीक है. सो इट्स
ऑल अ पार्ट ऑफ प्रोसेस, ठीक है। लाइक मुझे नहीं पता था स्कूल खत्म होने के बाद कि मुझे किस कोर्स में जाना है। मुझे ये तक नहीं पता था कि मैं कॉलेज में क्या कोर्स लेने वाली हूँ। कॉलेज में मुझे इतना पता था कि मुझे अकाउंट्स और मैथ्स लेनी है। मुझे पता था कि मुझे पसंद क्या नहीं है। अब उसके बाद जो मैं देख सकती हूँ मैं कर लूँगी, ठीक है। तो बहुत कंफ्यूजन रहती है। द फैक्ट कि कॉलेज के आने के बाद मुझे कंफ्यूजन थी क्या मैं काम क्या करूँगी, कॉलेज खत्म होने वाला है, मेरे को नहीं पता कि मैं क्या काम करने वाली हूँ, मैं किस चीज़ में जाऊँ, किस फील्ड में जाऊँ, मुझे नहीं पता। मुझे अभी कंटेंट बनाते हुए नहीं पता कि कल मैं क्या पोस्ट करने वाली हूँ, उसकी कंफ्यूजन रहेगी मुझे। सो कंफ्यूजन इज द प्रोसेस जिसमें आपको एक्चुअल में सब कुछ पता लग जाता है, ठीक है। उसके अंदर द थिंग इज इट्स नॉट कंफ्यूजन, इट्स जस्ट यू आस्किंग व्हाई, इट्स जस्ट यू आर आस्किंग योरसेल्फ कि यार करूँ क्या मैं, यू आर अगेन आस्किंग योरसेल्फ अब क्या करूँ, अब क्या करूँ, अब क्या करूँ, एंड दैट इज गुड, ठीक है। इट इज गुड कि अगर आप अपने से बार बार पूछ रहे हो ना व्हाई, बिकॉज यू हैव अ ग्रोथ माइंड, ठीक है। आप पूछ रहे हो आपसे कि मैं यार मैं क्या करूँ आगे, मुझे क्या करना चाहिए, अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। हाँ, बट अपने आप को उस चीज़ पे प्रेशर देना है, अपने आप को इतना ज़्यादा उस चीज़ पे दिमाग खराब कर लेना, उस चीज़ पे इतना ओवर थिंकिंग करना इज यूजलेस, ठीक है। क्योंकि लोग दिखाते बहुत अच्छा है कि यार मेरी लाइफ बहुत सॉर्टेड है, मैं दिखाती हूँ मैं कितना कमा रही हूँ, मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं कल ये वीडियो डालूंगी कि देखना मेरी लाइफ कितनी एकदम ही शिफ्ट हो रखी है। सबको आता दिखाना, बट एंड अच्छी बात है अगर सबका फिगर आउट है भी तो। द थिंग इज वो फिगर आउट करने के लिए उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें सोची होंगी, वो भी बहुत टाइम कंफ्यूज रहे होंगे, उन्होंने भी बहुत सारी ओवर थिंकिंग करी होगी, तब जाके वो यहाँ तक पहुंचे। सो इट्स जस्ट यू डोंट हैव टू कंपेयर योरसेल्फ विद समवन्स प्रोग्रेस, या फिर कि भाई अच्छा तुम कैसे कर दिया था इस एज पे, तुमने कैसे कर लिया। जस्ट गेट इंस्पायर्ड, और या फिर जस्ट सीक एडवाइस, और मे बी जस्ट रीड अबाउट इट, जस्ट गेट नॉलेज ऑफ इट कि हाँ यार ठीक है, इट्स अ पार्ट, ओके। किसी के पास ब्लूप्रिंट कुछ नहीं रहता, सब सोच रहे हैं, सब देख रहे हैं, सब कर रहे हैं, साथ साथ सब धीरे धीरे कर रहे हैं। मुझे भी लगता था कि यार मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है लाइफ में करना क्या है, होते होते हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, जस्ट ट्रस्ट गॉड। ऑल्सो आई वुड जस्ट से दैट योर टीन्स or your 20s aren't meant to be solved. It's the time where you experiment, grow and learn, okay. You don't have to have everything figured out, because you do not know that how universe will literally turn, or like switch your, like flip your realities. You literally don't know, like you don't know the next day God will do something really out of the box and you like it, you never know it, okay. So in the process of figuring it out, just give yourself this much of flexibility. Don't give yourself the flexibility, give universe the flexibility to do its own work also. So you'll have everything on your plate what you deserve, okay. You'll have everything which you deserve, and you'll know what is right for you and what is not. You'll just have your calling. So yeah. So the next question is, what if figuring it out is just learn how to sit with uncertainty? Everything is uncertain, okay. The answers I'll give, uncertain. The video I'll upload, uncertain. The choices I'll make, uncertain. And the next step I'll take is uncertain. Life is uncertain, okay, simple. But what is certain is the actions you take, because they are not certain, they are intentional. Just let it sink in, okay. Just sit with it, that life is uncertain. Everything is uncertain, but the actions you take are certain because they are intentional. That's all I need to say for this answer. That's all, okay. So I don't know इससे मैं बेटर और इस चीज़ के अंदर क्या बोल सकती हूँ, बिकॉज हर चीज़ अनसर्टेन होती है, किसी का कुछ नहीं पता। बट जो मैं सिर्फ उस चीज़ पे देख सकती हूँ कि अब मैं नेक्स्ट करने क्या वाली हूँ, मुझे नहीं पता उसका आउटकम क्या होगा, कैसे निकलेगा, कैसे क्या कब निकलेगा, क्यों निकलेगा, I don't know. That's all uncertain. It's not in my hold. It's not in my control. But what I know is कि मैंने अब ये कर दिया है। अब now it's on the universe. Now I've just put it out. अब देख लो भाई। तो हर चीज़ uncertain है, but all I know is कि I'm just aware or intentional about each and every step I'm taking. So that helps. Now time for segment 4, which is strength and fast changing world. Big girl talk. And the first question is, how do we? The question is how do we brace ourselves to become more stronger and walk with the constant changing world? So the thing is, you never stop bracing yourself, you simply adapt with the world, okay? It's just you need to be authentic with who you are, okay? The world will constantly change and there are certain things की जो भाई आएंगी जाएंगी करेंगे, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बहुत सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत सारे लोगों से मिलोगे, बहुत सारे instances होंगे, बहुत सारे experiences मिलेंगे, but you need to be authentic about it, okay? Like you need to just know yourself, okay? You just need to know yourself because ये चीज़ें हर समय बदलेंगी, जैसे कि ट्रेंड्स बदलते रहते हैं सोशल मीडिया पे, okay? It's just an example, चीज़ें ट्रेंड्स बदलते रहते हैं, but
हर एक ट्रेंड शायद आपके लिए नहीं होता, हर एक चीज़ आपके लिए नहीं होती, हर एक चीज़ पे आप पैक आउट नहीं कर सकते हो, हर एक एक्सपीरियंस को शायद आपके लिए नहीं होता. लाइक यू नो ये जवानी है दीवानी का कैसे डायलॉग था, कुछ ना कुछ चीज़ें छूटेंगी. सो द थिंग इज येस, things are ever changing, things are like, you know, it's a world where things literally constantly change. They just change like this, okay? So what you need to do is just be authentic, right? That's the way you can brace yourself. That's the only way you can brace yourself. Because if you know who you are at your core, you'll, you know, adapt and you'll learn and you'll face it, okay? मुझे पता है कि कल क्या चीज़ होने वाली है. I don't know. It might be a total different thing, okay? It is something I'll do will be a total different thing tomorrow, okay? But at least I know कि मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या नहीं पसंद है, and I know my values, I know my morals, I know myself, my likes, my dislikes, everything about myself. So I know कि कल जो experience होने वाला है उसके अंदर मुझे होना है नहीं होना है, करना है नहीं करना है, मुझे वहाँ कितना वहाँ से हर एक एक्सपीरियंस लेना चाहिए. उससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उससे थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर आते हो. द लाइफ इज जस्ट सो, you know, huge. Like the world is so huge and there are so many things that you can experience, there are so many things that you can actually enjoy in life which you won't be able to if you are in your comfort zone. So I would say this, that yes, you need to get out of your comfort zone and hence you actually, you know, act on it. That's how you just literally embrace the world, the ever changing world or the constantly changing world. So yes, the next question is, how do I overcome my fear how do I overcome my fear of stepping into adult world, job, the outside world aside from academics? Okay, first of all, you are your own judge and your own anchor, okay? Second, everything looks daunting at first, everything, okay? like जैसे बचपन में होता है कि यार मैं ABCD कैसे पढ़ूँ, ये तो बहुत ही स्केरी है. मैं बोर्ड्स कैसे दूँ, ये तो बहुत ही स्केरी है. मैं कॉलेज का फॉर्म कैसे भरूँ, ये तो बहुत ही स्केरी है. मैं दोस्त कैसे बनाऊँ, ये भी बहुत स्केरी है. स्केरी हर चीज़ होती है, ठीक है? लाइक लिटरली everything I would say is scary. It's just pros and cons दोनों चीज़ों के होते हैं. एंड ऑल्सो जब आप एडल्ट वर्ल्ड में घुसते हो, लाइक जॉब और इन सब में, इट गिव्स यू फ्रीडम एंड इट हैज़ इट्स प्रोज एंड इट हैज़ इट्स कॉन्स, ओके? लाइक दोनों के अंदर अच्छी चीज़ें हैं, बुरी चीज़ें हैं, एंड दोनों एक ऐसी चीज़ें हैं कि मतलब ऐसी चीज़ें हैं कि प्रोसेस कर, मतलब यू नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस, ओके? यू जस्ट लर्न विद द प्रोसेस. बचपन में कैसे होता था कि जैसे हम सोचते थे कि अरे जब मैं बड़े हो जाऊंगे ना, मैं पैसे कमाऊंगी, हमारे पेरेंट्स की लाइफ कितनी बढ़िया होती है. फिर जब बड़े हो जाते तो सोचते यार बचपन में ही ठीक था, बचपन में ही मैं सही थी यार, अच्छा कर रही थी अपनी लाइफ में, खुश थी मैं, ठीक है? तो स्केरी चीज़ें कभी लगना बंद ही नहीं होती, बट यू समहाउ फिगर इट आउट, ओके? लाइक ऐसा फिर एक टाइम पे हो जाता है कि ठीक है यार, मेरे को पता है कि मुझे कैसे जज करना है हर चीज़ को, मुझे हर एक एफर्ट, बट हाँ, यू नीड टू पुट योर बेस्ट स्टेप फॉरवर्ड. लिटरली एडल्ट वर्ल्ड में अगर घुस रहे हो, अपना पैशन पता हो, अगर पैशन नहीं है अपने इंटरेस्ट पता हो, उसको एक बना लो, उसको एक हॉबी पता हो जिसको आप एटलीस्ट एक किसी चीज़ में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, ठीक है? आई वुड से नेवर वेस्ट योर पोटेंशियल, ओके? इफ यू आर स्टेपिंग इनटू एनी जोन, ओके, आइदर इट्स योर अडल्ट वर्ल्ड और मे बी it's anything, okay? Like any sector or anything, okay? You need to put your best step forward and never waste your potential. Because yes, the thing is, मेरे पापा ने एक बार बोला था, मैंने बहुत काम करने के बाद मैं एक दिन बैठी और मैं अपने पापा से बात करूँ कि पापा आप बताओ, देखो, you should be proud of me. And he said, Lavana, if you're just happy in this much, you won't be able to, you know, experience more. तेरे अंदर इतना पोटेंशियल है कि तूने अभी सिर्फ इतना काम किया है, ओके? तूने अभी इतना काम नहीं करा है. तो that, and he did say that yes, I am very proud of you. Like you have come so far, you have done so well, but you should not be satisfied. Yes, you should be happy, but you shouldn't be satisfied with this much, okay? There's a lot you need to have, you need to get, and you need to achieve. So don't waste your potential and don't get satisfied with this much, okay? Yes, be happy, be proud of your success and be proud of how far you have come, but don't get satisfied this early because you're just 20, okay? करते करते चीज़ें समझ आ जाती हैं धीरे धीरे. So yes, daunting लगेगा, स्केरी भी लगेगा, बट एक करते करते ना वो हो जाते हैं कि चल ठीक है, you just grow a thick skin. You will be like, ठीक है, now it's easy for me. I've learned it. So okay. So now it's time for the last question, which is, what's one thing I should keep in mind while meeting new people? Something that wouldn't make me suppress my personality. Nice question. I love it. Okay. So first of all, you be you. Literally, you be you. Okay. You do not need to morph yourself into another person. You don't need to be a different person so that people like you. You don't need to do that. Just yes, ask questions. Just say your truth. Okay. कुछ समझ नहीं आ रहा, पूछो. कुछ नहीं समझ आ रहा, बात कर लो. कुछ अगर लग रहा है कि यार मैं यहाँ पे मुझे ना I need to just be liked by some people, वहीं पे you are just losing the concept. Okay. Then you are just not meeting new people. You are just simply, you know, meeting your new self. Seriously. And that's not how you create a new self. Okay. So it's just easy it's easy to strike a conversation. You just need to have the courage. Okay. Start by asking questions because people love to talk about themselves, okay? Just start asking questions. And sometimes, you know how it helps कि you
and mirror their personality. Not say that okay, just the way they're talking, the way they're behaving, the way they're talking. No, don't. Okay, but you can sometimes mirror their personality so that you get to know them. Okay, and you connect with different people. Okay, जब आप 10 लोगों से बात करते हो, 10 लोगों से मिलते हो, it teaches you so much. Literally एक बुक पढ़ना आपको इतना नहीं सिखाएगा, कोई चीज़ आपको इतना नहीं सिखाएगी जितना आप लोगों से बात करते हो, डिफरेंट कल्चर के लोगों से या डिफरेंट लोगों से. एंड कभी भी आप अगर न्यू लोगों से मिल रहे हो, they are also scared. Okay, उन्हें भी लग रहा था कि मैं क्या बात करूँ. Maybe दोनों के दिमाग में सेम चीज़ चल रही हो. You never know. And sometimes people love कि भाई चलो ठीक है, मेरे से नहीं हो रही थी बात, सामने वाला आ गया मुझसे बात करने. Now I'm at peace. Okay, at least मैं अब ठीक हूँ कि चलो ठीक है, I'm not alone. तो और मान लो चलो आपको एक ग्रुप के अंदर जाके बात करनी है. Just be yourself यार. कुछ चीज़ें पता लगेगी कि हाँ ठीक है, आपको पता लगेगा कि मुझे इस इंसान के साथ रहना है, इस इंसान के साथ नहीं रहना है. Not everyone will like you instantly. Not everyone will make you feel involved instantly. But at least you will have the confidence कि हाँ मुझे पता है कि मुझे लोगों से बात कैसे करनी है, मुझे पता है कि मुझे कितनी बात करनी है, मुझे पता है कि कहाँ मुझे लोगों के साथ बैठना और कहाँ, और या फिर मुझे किस टेबल पे नहीं बैठना. सिंपल, ठीक है. ये थॉट ही नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि मुझे ऐसे बात करनी है ताकि वो मुझे पसंद कर ले. अगर ये थॉट से कॉन्वर्सेशन शुरू हो रही है तो फिर वही कॉन्वर्सेशन खत्म कर दो, करो ही मत, ठीक है. क्योंकि ठीक है, बातें अपना तरीका होना चाहिए, बातें निकलवाने का, अपने बातें लोगों से बात करने का, हर चीज़ का तरीका होता है, ठीक है. देयर विल बी टाइम वेयर यू माइट फील एम्बैरेस्ड, देयर विल बी टाइम वेयर यू थिंक कि ये क्या बोल के आगे गया. यू विल रिप्ले अ कॉन्वर्सेशन इन योर हेड कि यार ये बोल लेना चाहिए था. मे बी विद अदर पर्सन यू नो, maybe with other person you'll know the right thing to say, the right thing you need to actually say actually. या maybe उसी कॉन्वर्सेशन में मेरा इतना अच्छी मेरी उनसे बातचीत हो गई कि वाह यार, we are just very we are good friends now, or we are just a good connection now. Could be anything, ठीक है. So you need to be yourself because that's how you know that तुम्हारे लिए कौन लोग हैं rather than तुम किसके लिए हो, ठीक है. सब अपने लिए सोचते हैं, सब अपना करते हैं. So ये करते करते पता लग जाता है कि ठीक है मुझे किससे बात करनी है और किससे नहीं करनी है. So yes, so that was all and I tried answering as many as questions I could. And if you think that I should make a part 2 of it, let me know. And if you have some questions to us, you can send in the comments. And if you came this far, thank you so much. And I hope you take something out of this video. And even if you don't, I hope you just listen to it, okay. And if it helped you, then I'm glad, okay. If it didn't, that's also fine. Comment which thing you related hard with, or maybe जो चीज़ एक्चुअली में लगा हो कि हाँ ठीक है यार, दिस इज समथिंग आई कैन टेक विद माई सेल्फ, और दिस इज समथिंग आई रिलेट विद, और मे बी यार हाँ ये चीज़ उसने सही बताई है. सो लेट्स और या फिर और क्वेश्चन, या अगर मैं किसी चीज़ में गलत हूँ तो एडवाइस नहीं, या अगर मैं किसी चीज़ में सीख सकती हूँ, क्योंकि मैं भी अभी उसी स्टेज में कि मुझे भी बहुत सारी चीज़ें करनी है, मुझे भी बहुत सारी चीज़ें सीखनी है. सो अगर मुझे कुछ सीखना चाहिए या मुझे कुछ पता होना चाहिए, डू टेल मी इन द कमेंट्स एंड लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू लाइक इट, एंड थैंक यू सो मच. बाय. थैंक यू सो मच.